Good morning, all of you. Hope you all are fine at home. Today we will discuss present tense. Now let's start. Yes, in the last video we had learned different types of tense. First type is present tense. Second is past tense. And third one is future tense. In general use we said today, yesterday and tomorrow. So in the last video we had also learned the other four types of these tenses. They are indefinite, continuous tense, perfect and perfect continuous. In our today's video, we will learn all the four parts of present tense. In today's class, in today's video, we will learn only these four parts of present tense. In this term, present tense is in our syllabus, so we will discuss all the four parts in detail. Now let's start with the present indefinite. First type is present indefinite tense. Present indefinite tense, its formation. We will take two types of subject and two formations in this: subject plus V1 and object. Subject plus V1 plus SES and object. These are the formation of positive sentences. The difference between these two formations is in the first tense. In the first, our subjects are I, we, they, you and plural object, right? And in the second formation, our subjects are he, she, it and singular या name. जैसे एक पर्सन का नेम, जब हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, at that time we will use first formation like subject, V1 and object. First example of the first formation: I read my book daily. In this, our subject is I. This one is for the first, this one is for the second. I read V1, this one is object. Subject, V1 and object. Now an example for the second: he reads his book daily. In this, our subject is he and we use V1 plus S and ES, right? Next is make it negative. These are positive. When we have to change it into negative, we use
another formation, subject plus do not plus V1 and object. And second is subject plus does not plus V1 plus object. Here we will not use SPS because to make a sentence negative we use yes with do. In the first formation we use do not. In the second formation we use does not. Look at this example. I read my book daily. To change it to negative, I use I do not read my book daily. Same as in the second formation, we said he reads. Here we got S. He does not read his book daily. Right? In the first formation we use do not according to our subject I, and with the verb read we use do not, and here we use reads. To make it negative we use does not and read. Right? Next is we will see how we will change these sentences into interrogative. Now next formation is interrogative. For interrogative we use do plus subject V1 and object plus question mark. Same as does plus subject plus V1 object plus question mark. Right? Same our example thing. Our example was I read my book daily. Now to change it into negative interrogative we write do I read my book daily question mark. A second example was he reads his book daily. To change into negative interrogative we first of all we cut S. We use does he. Now we will use small letter for he. Does he read his book daily question mark. Students, we use present indefinite tense to show first our habits. Look at this sentence. I read my book daily. इसका मतलब कि मैं अपनी किताब रोज पढ़ता हूँ. It's my habit. Second is customs. Customs को show करने के लिए like he respects his elders. वो अपने बड़ों का आदर करता है. Third is routine. एक आपका रूटीन है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. हमारा रूटीन है इस बुक के अकॉर्डिंग. नेचर का रूटीन है द सन sets in the west. So, hope present indefinite tense is clear to you. We use present indefinite tense to show our habits, our customs, our routine work. जिस चीज को हम रोजाना करते हैं और इसकी रिको होती है सेंटेंस ends with ता है, ती है, ते. Right? I think now present indefinite tense is clear to you. एक सेंटेंस जिसका एंडिंग वर्ड, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, I make you understand. वह मुझे पढ़ाती है, she teaches me. हम पार्क में खेलते हैं, we play in the park. एंडिंग वर्ड था ता है, ती है और ते है. इस टेंस में अगर आपको कोई डाउट नहीं रहा तो आगे जो टाइप्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सबसे बेसिक टेंस जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी हमें प्रॉपर नॉलेज होना
जरूरी है फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे नाम से क्लियर है कि कंटिन्यूस, कोई चीज चल रही है, जो चीज प्रेजेंट में चल रही है उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इट मीन्स जो काम हम अब कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जब आप देखोगे, आप वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, इट मीन्स वो काम हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं। उस चीज को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ये हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। इसकी फॉर्मेशन सबसे आसान, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर V1 प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट होगी और साथ में ing लगा होगा। किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में, चाहे वो फ्यूचर में है, V1 के साथ ing लगा होगा। इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट। उसके बाद हम V1 लगाएंगे और लास्ट में ing एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए सिर्फ इज एंड आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने इसको यूज करने, वो हम बाहर निकालेंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस V1 ing एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। इसके एग्जांपल देखो, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर। इसको नेगेटिव में चेंज करना हो तो आई एम नॉट गोइंग देयर। सेम है, अगर इसको इंटरोगेटिव में करना है, इसको एम बार आएगा, नॉट और गोइंग नहीं आएगा। लाइक एम आई गोइंग देयर, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम डेली यूज करते हैं। जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, चलिए बोले व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आपने उसको कंटिन्यूस में आंसर देने। देन आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई एम कंप्लीटिंग माई नोटबुक, आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड, आई एम ईटिंग सिकेटिवली। क्लियर? आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज वेरी इजी टू यू। और इसकी जो रिको, इसका एंडिंग वर्ड होता है रहा है, रही है या फिर रही है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वह किताब पढ़ रही है, बच्चा खेल रहा है, वे जा रही हैं, राइट। और नेक्स्ट टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स अपने आप में पूरा, जैसे कहते हैं ना ही इज परफेक्ट, कि वो बहुत अच्छा, वो परफेक्ट है इस काम में। तो अकॉर्डिंग टू दिस नेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस हम तब यूज करेंगे जब हमारा कोई काम पूरा हो गया, हो चुका है। अब इसकी रिको देखो, सबसे पहले आज रिको में इसकी रिको होगी चुका है या चुकी है या फिर चुके हैं। इसमें एक बार हम वो ऐड कर सकते हैं, लिया है। आप कहते हैं ना मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माय वर्क। हम बोलते हैं ना मैडम मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ, या मैं वह काम कर चुकी है, चुका है या चुकी है। जो काम आपने शुरू किया हुआ था वो पूरा हो गया। प्रेजेंट, अभी जिस टाइम आप बात करें आपका काम पूरा हो गया, वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी फॉर्मेशन होती है subject plus has have according to the subject plus V3 and object। इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए subject plus has have not plus V3 and object। और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के लिए has have
प्लस सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने कोई काम मैं आपको 2 टेंस करवा चुकी हूँ। आई हैव मैं पहले ही 2 टेंस करवा चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया पहले ही मतलब ऑलरेडी। मैंने अभी अभी आपको टेंस करवाया है जस्ट। वी यूज दीज 2 वर्ड्स आल्सो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जो काम आप करवा चुके हैं उसके लिए हम ऑलरेडी जो अभी अभी करवाया है उसके लिए हम जस्ट आई हैव जस्ट टॉट टू यू दिस कि मैंने अभी तो आपको ये बताया है। जब आप भी मैं ये बता दो ये कैसे मतलब टीचर बोलते हैं कि मैंने अभी तो बताया आपने सुना नहीं बच्चे। आई हैव जस्ट टोल्ड टू यू अ फ्यू सेकंड्स बिफोर। तो वहां पर हम ये ऑलरेडी और जस्ट वर्ड यूज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखो, शी हैज जस्ट कम। और इसमें हैज एंड जस्ट कम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कोई भी। कब की थर्ड फॉर्म कमिति कम के कब, जस्ट मतलब वह अभी अभी आई है। एक और एग्जांपल देखो, यू हैव पेड ऑल योर ड्यूज। मतलब आपने अपने जितने भी ड्यूज, जैसे बोलते हैं आपकी फीस ड्यू हो गई है, जितने भी आपके ड्यूज थे यू हैव पेड ऑल योर ड्यूज। आप अपने सारे ड्यूज पेड कर चुके हैं मतलब भुगतान कर चुके हैं। इसमें हम ऑलरेडी वर्ड भी यूज करते हैं, यू हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी लगाने का मतलब ये हो गया कि तुम अपने सभी ड्यूज का भुगतान पहले ही कर चुके हो। नेगेटिव बनाने के लिए हम हैज के साथ नॉट लगाएंगे और इसमें हैव के बाद नॉट लगाएंगे। डेरिवेटिव के लिए मींस हैज और हैव को बाय लेंगे। यहाँ पर हैज शी जस्ट कम क्वेश्चन मार्क, हैव यू पेड ऑल योर ड्यूज क्वेश्चन मार्क। राइट, क्लियर नाउ। फोर्थ टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें परफेक्ट है जो पूरा हो गया और कंटिन्यूस जो चल रहा है। कंफ्यूजन हो रही है ना? तो इसमें जो काम आपने शुरू किया था पहले पास्ट में शुरू किया था और अभी तक वो चल रहा है, उस चीज के लिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें आप मेरे वर्ड्स पे स्ट्रेस देखो, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। एक चीज आ रही है पढ़ रहा हूँ तो कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। पर इसमें एक वर्ड आया सुबह से, इसमें टाइम पीरियड गिवन होगा आपको। जिस सेंटेंस में आपको टाइम नहीं गिवन उसमें हम कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पर अगर किसी सेंटेंस में आपको टाइम की कोई यूनिट एग्जैक्ट यूनिट है या फिर कोई भी आपको टाइम पीरियड गिवन है, उसमें हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। इसकी रीति होती है से रहा हूँ, सेम एज से रही हूँ या फिर से रही है। बच्चा सुबह से सो रहा है, वे सुबह से खेल रहा है, हम 2 दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जिसमें हम टाइम बता रहे हैं कि मैं ये काम कब से कर रहा हूँ, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे। इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 एंड ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। देन फर्स्ट इसको नेगेटिव में बनाना होगा हमें, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट जो है वो हैज और हैज बीन के बीच में लगाएंगे, प्लस नोट देन बीन, देन V1 ing
ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इंटेरोगेटिव के लिए हम सिर्फ हैज और हैव को बाहर लेकर आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ओ, करेक्ट, V1 plus ing and object plus since for plus question mark, right? Has, have, subject being V1 ing object since for and question mark. इसके एग्जाम्पल देखो, they have been living here since 2010, right? Same example, I repeat, they have been living here for 10 years. I use same example, but first in the first I use since, in the second I use for. The difference is 2010 and 10 years. यहाँ पे हमें एग्जैक्ट ईयर पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो कब से यहाँ पर रह रहा है, और इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन से 10 सालों से, आज से 10 साल पीछे जाए या उससे भी 10 साल पीछे, हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम कौन से 10 सालों की बात कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, और जहाँ पे एक्सपेक्टेड इमेजिनेशन है जिससे हमें क्लियर नहीं है वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। सिंस का एक और यूज़ है, तो देखो ध्यान से, सिंस हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें फिक्स टाइम गिवन है, लाइक 2 o'clock मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी ऐसा जो हमें बिल्कुल क्लियर है। और फॉर हम यूज करेंगे 1 to 10 नंबर्स, जिसमें सिर्फ नंबर्स गिवन होंगे। ये जरूरी नहीं कि 10 तक ही होगा, यहाँ पर आप 100 भी लगा सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, जितने भी मर्जी नंबर, पर हमें जहाँ पे नंबर्स क्लियर नहीं है वहाँ पर हम फॉर यूज करेंगे, राइट। और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ हैव को बाहर लेकर आएंगे, have been, been, बाकी सेम, और इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए have के साथ not. All these 4 types are clear to you, and if you have any doubts regarding any tense, then prepare your doubts for the doubt session. In the doubt session we will discuss all the problems, but send me your doubts in the chat box. Till then, stay home, stay safe, have a nice day. Thank you.